Welcome to the Business Front, where we discuss issues important for India's business and India's taxpayers. Elon Musk, who is also known as International Ashneer Grower, अभी मोदी जी से मिले हैं and apparently he's a very big fan. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right time. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. It is also interesting to note that because of Modi's US visit, a lot of investment is coming in India. Google अपने गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर बना रहा है. It is also investing $10 billion in India digitization fund. Amazon is also saying कि 11 billion हमने already invest किया है और 15 billion और करेंगे. And even Elon Musk is saying that Tesla is going to do everything humanly possible to invest in India. Now these seem like very big achievements कि इतना सारा investment इंडिया में लाया जा रहा है. And it is true कि इन्वेस्टमेंट आना और ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस होना इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी, बट इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी हमें देखने को मिलती है. पहली बात तो यह है कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सेक्टर. बट एट द सेम टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग और यहाँ पे हमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना इनफैक्ट काफ़ी लुक्रेटिव होना चाहिए, इसमें काफ़ी सारे प्रॉफिट्स होने चाहिए, बिकॉज इंडिया में काफ़ी सारा लेबर ये एग्रीकल्चर में फंसा हुआ है. दे कैन बी ब्रॉट इन इंडस्ट्रीज एंड दे कैन ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ इनकम देयर. एट द सेम टाइम इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. बट ऐसा होते हुए भी हमें ये देखने को मिलता है कि फॉरेनर्स इतना मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. और ये पहली बार नहीं है जब इलॉन मस्क और इंडियन गवर्नमेंट ने एक दूसरे के साथ बातें की है, डील की है कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में. और ये पहली बार भी नहीं है कि इलॉन मस्क को इन्वाइट किया गया है टू इन्वेस्ट इन इंडिया. India's vaccine maker Adar Poonawalla had tweeted that he should think about investing his capital in India and set up Tesla manufacturing. He also promised that it is the best investment ever. By the way, is this not the same Adar Poonawalla जिनको देश छोड़ के भागना पड़ा था because politicians were threatening him for vaccines? Union Minister Nitin Gadkari had also said that India has the capabilities and Elon Musk can definitely invest in India. But वहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी. Elon Musk का ये कहना था कि पहले मुझे आप यहाँ पे कार बेचने दो, पहले मैं यहाँ पे कार बेचूंगा और फिर मुझे पता लगेगा कि इंडिया में सच में इतना पोटेंशियल है कि नहीं, और अगर मुझे मार्केट दिखता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं फैक्ट्री सेटअप कर दूंगा. ही हैड ऑल्सो सेड कि इंडिया के इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है दे आर वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड, रीचिंग 60 to 100%. बट इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, आपको यहाँ पे फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाहर बना के इंडिया में बेच रहे. और इस सब का नतीजा ये था कि इलॉन मस्क ने चाइना को चूज़ किया. Now there is a huge gigafactory of Tesla in Shanghai, China, which is providing a lot of jobs as well as technology to the Chinese. This has been one of the tragic aspects of Indian economic policy, where we lose a lot of investment, especially in Indian manufacturing, to China or other Asian economies. India में manufacturing में invest करना already काफ़ी risky bet है. There is a huge amount of compliances. There is a huge problem when it comes to acquiring land. There is a huge problem when it comes to labor laws. और बात है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की कि अलग अलग चीज़ों पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा के लगाई जाती है. बिकॉज ऑफ दैट यू कैनॉट इम्पोर्ट क्वालिटी मटेरियल फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट. चलो मान भी लिया कि आपके कंपनी ने पूरा कंप्लायंस मैनेज किया, एवरीथिंग दे आर मैनेजिंग, बट व्हाट अबाउट द ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी को तो पैसा खिलाना ही पड़ता है. ये सब चीज़ों का कॉस्ट कौन सोचेगा? तो इतनी सारी अगर यहाँ पे दिक्कतें ऑलरेडी है तो इलॉन मस्क ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू मेक अ डील. वो ऐसा तो नहीं करने वाला कि हाँ जो आप बोलोगे वैसा होगा. और आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, मोदी जी को खुद जाके इन्वेस्टमेंट लाने पड़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इलॉन मस्क इज हिमसेल्फ विजिटिंग चाइना. ही इज विजिटिंग वेरियस फंक्शनरीज ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड ही इज इन्वेस्टिंग इन चाइना.
Although Indian government is doing certain things for reducing compliances for Indian manufacturing, it is clearly not enough. Whole policy is based around protecting the current industry, while newer industries and जो छोटे इंडस्ट्रीज है उनको बड़ा कैसे करना है इस बारे में ज़्यादा सोच विचार चल नहीं रहा है. इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. वन ऑफ द मेन रीजंस इज इसमें इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज का काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिला है. फॉर एग्जाम्पल इन पिथमपुर फोर्स मोटर्स ये ऐसी इंडियन कंपनी है जो इन्वेस्ट की एंड दे आर सक्सेसफुल इन मैन्युफैक्चरिंग इंजिन्स. At the same time, there is a company called as Bridgestone, which is a Japanese company manufacturing tires in Pithampur. But this is a rare thing. Automobile sector manufacturing ये अलग अलग factors की वजह से बड़ा है. But otherwise in other sectors of manufacturing you don't get to see this much. And this is not going to change unless we reduce compliance burden on manufacturing, we reduce the harsh labor laws which are very anti-business. And unless we change all these things, it is unlikely that any foreign investor will easily invest in India. Some of you might say that क्या ही फर्क पड़ता है, इंडिया में है ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी सारे लोग हैं, they will manufacture electronic vehicles. You may be right, but not collaborating with the international industry can lead to lack of quality in the product. Now that is not good for India's consumers overall. गवर्नमेंट के जो गोल्स है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल सेक्टर आर ऑल्सो नॉट इजीली अचीवेबल बाय जस्ट अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री. गवर्नमेंट चाहता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 7% ऑफ GDP शुड कॉन्ट्रीब्यूट 12% टू द GDP. इट ऑल्सो वांट्स कि जो अभी 37 मिलियन जॉब्स वो दे रहा है, it should go up to 50 million jobs. If that is your goal, then you should do anything that is possible to get as many investment as possible in India. You should incentivize production as much as possible in India. But भाई लोग, तुम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इतना मुश्किल कर दिए हो इंडिया में आके कि वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी भी 2 बार सोच रहा है एंड देन ही इज गोइंग टू चाइना, देन शायद इस चीज़ों के बारे में रीथिंक करना ज़रूरी है. That is it for this video. The business front is in the business of exposing anti-business and anti-taxpayer ideas and policies. हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.